So Pratibha, the other day you were not there when I had ended the session. I had given a kind of an assignment, which was a practical assignment, which we're going to discuss today. Okay. But we'll request everybody to develop that kind of a daily planner with the activities for the day based on what we discussed last week. Okay, ma'am. So please consider as a part of the assignment, yeah? Sure, ma'am. I will be there. Yeah. So should we start? Yeah, ma'am. Thank you. Request everyone if you could turn on your cameras, videos, so that we can have a little recap. So everybody remember what we talked about? I request everyone to kindly switch on their cameras. All cameras are off today. Lavanya ma'am, Sadhana ma'am, Aarti ma'am, Vijay Devi, Divya, Ruchi Sharma, Bhavna, Shweta Jaiswal. Please switch on your camera. So if you all remember, we talked about the morning routines, and I asked you that all of you should develop a daily planner, keeping in mind the morning routines. Yes? And the morning routines, it included your sensory play, water play, sand play, nature exploration on Monday, Tuesday, and then circle time with the four types of circle time that we have: the social emotional, language, story, right? And we also talked about the routines that you would like to establish. That after the circle time, there would be weather chart, calendar time done in the classes, either by you or by the children. Okay? So I understand if you didn't get the time to do this, then please do it anytime it is possible for you and upload it. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Any questions so far about what we talked? No, ma'am. All right. So once again, I'm playing this video. Why I'm playing this video? Because this talks about how can we allow environments. हम कैसे अपने classroom environment को बना सकते हैं to play, allow play, choice, wonder and exploration. You all have seen this earlier. Okay. So I will just run it so that you get more ideas of putting the sensory material in your classes. Are you able to hear the sound? Everyone? No, ma'am. Were you able to hear the sound? No, No, ma'am. no. Why is that? Look at that one. What's different about this one? Feel it. Comfy.
What did you see, teachers? The first activity, what were the children doing? Coloring the pumpkin, ma'am. Yeah. And did you see, was it a free organized play? Yes, Yeah? ma'am. Yes. It was a kind of a play, an activity which was planned by the teacher. Teacher ने उस activity को plan किया हुआ था, but teacher allowed play. She allowed that the children could paint it the way they wanted, right? Yes, ma'am. What kind of activity is this? I Table. can't. Arranging the table, ma'am. Yeah, so that's a center. That's a learning center. And again, it's a planned activity. It's a structured activity. Yes, ma'am, it's structured. Yes, and there is an objective also. Did you see कि वहां पर task भी लिखा हुआ था? Can you count and match each button to the number? Yes, आपका ma'am. task specify किया गया था, right? Individual or group activity? Individual. Individual. We could have made it team activity also. हम इसको team activity भी बना सकते थे. Yes. Yes. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good. One, two, three, four. Here, I'll move it out. Again, is it a individual activity or a group activity? Group Group activity. Yes. And is it structured or unstructured? Structured. Structured. Okay. And it is structured, it is planned. The task is कि आपको अपनी रंगोली खुद बनानी है. आपने देखा कि आप चूज कर Yes. सकते हो अपने रंगोली का कलर, right? But do the children have the voice and choice? Yes, ma'am. किस तरह की voice and choice है बच्चों के पास इस एक्टिविटी में? Choose your color according to you and draw according to you. Yes, yes. So it is a structured activity, but And with the voice unstructured and for choice. children. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, Ruchi. Ma'am, my video is not on. Is there any problem from your side, ma'am? No, no, I don't have controls to turn off anybody videos. Yes, ma'am. Host has can't been open- disabled it. Yes, ma'am. Yes. सभी के साथ हुआ है. आई थिंक प्रतिभा मैम ने किया होगा वो डिसेबल. But I am the host right now because I'm able to, I am, Yes, ma'am, but we cannot ma'am, open without our video. कैमरे पे जैसे क्लिक करते होस्ट हैज disabled it You बता cannot रहा है. start your video because the host has. You cannot start your video because the host Okay. has disabled it. okay. Ma'am, without I- eye contact, ma'am, समझना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ma'am. Right now, I completely get you. We'll just shout out for there. Pratibha, are you there?
No, I understand. Yes, And ma'am. Yes. Pratibha, you have disabled. I'm the co-host. Okay. Everybody is facing problem in turning on their videos. It is saying that the host has disabled the video setting. Just let me check, ma'am. Please switch on now. Now turn on, teachers. No, ma'am. No, ma'am. Same problem Same procedure. there. See now. Please try now. Yes, ma'am. It's open now. Yes, ma'am. Yeah. Yes, Host ma'am. setting. Okay, good. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Should we continue, teachers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, good. What do you think was happening in that activity? This one? Stitching, ma'am. Before stitching. Transport. Folding the Printing. clothes. Folding the clothes. So this is that they are using their fine motor and they are using the machine. इससे पहले बच्चे एक कार को एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर में बिल्डिंग में डाल के देख रहे हैं. I'll show you once again. Can you see this? It's a very short one, but again, it's again a discovery table, a science experiment that एक ब्लू कलर की कार है, अगर वो डिफरेंट कलर्स के थ्रू क्रॉस करके जा रही है, what would happen? Again, lot of inquiry and exploration कि what do you think would happen? जैसे हमने बात करी थी कि हमने कॉर्नफ्लोर किया, तो what do you think will happen अगर हम सैंड में वाटर डालेंगे, अगर हम कॉर्नफ्लोर में वाटर डालेंगे, अगर हम इसमें वाटर डालेंगे. रिमेंबर आई मेड यू डू दैट एक्टिविटी. Yes, ma'am. मैंने आपको 3 मटेरियल्स दिए थे और उसने बोला था कि इसमें हम वाटर डालेंगे और आप मुझे अपना प्रिडिक्शन बताओ कि वो क्या होगा इसको. सो इन द सेम वे इट वाज आल्सो डन ऑन अ सेंटर, ऑन एन एक्सप्लोरेशन सेंटर, बट द टास्क इज टू मेक प्रिडिक्शंस कि अगर हम कार को इन कलरफुल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, बिल्डिंग्स के थ्रू लेके जाएंगे तो क्या कलर का चेंज होगा, क्या हमें कलर दिखेगी. सो यू कुड डेवलप दोज क्वेश्चंस एंड आस्क द चिल्ड्रन, राइट? Yes, ma'am. Do you think it's going to be out? Did you hear the teacher was asking, or do you think it should be up? So is the teacher telling her what to do, or is she asking her and taking her opinion? Taking her opinion. Yes. She's asking, what do you like to make? Where would you like to put the button? How would you like to do it? Right? It's all imaginative play, the drama center, where जहाँ पे बच्चे डिफरेंट कैरेक्टर्स के रोल को ड्रेसअप कर सकते हैं. मुझे केप बनाना है, मुझे रोब बनाना है किंग का, मुझे क्राउन बनाना है. And they're having a live experience on the machine to stitch it. Of course, adult supervision is important, but they're doing it. Are you getting it? Every activity
is based on a learning center with area of development and the objective. Did you notice? Yes, ma'am. Yes, इसमें ma'am. जब बच्चे क्लोथ्स को स्टिच कर रहे हैं, there is physical development of fine motor, right? But there is creativity, there is imagination, right? When they were doing Rangoli, again, it is art and craft, but there was imagination, there was voice and choice. There was also knowing about that जब आप एक रंगोली होती क्या है in Indian culture. And I'm sure आपको पता चल रहा है कि this is not an Indian school. But they have taken Rangoli as one of the art form. So local and global, right? उसी तरह से मंडाला आर्ट, उसी तरह से सैंड आर्ट, ये सारे आर्ट एंड क्राफ्ट में आप ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, कल्चर्स के, स्टेट्स के ऐसे आर्ट एक्सप्लोर कर Yes, सकते ma'am. All right. Over the sea and One, two, three, 4, 5, 6, 7. What did you just see? Two activities. First was Lakshmi, say again. Unmute yourself. Rhymes. Very good. Rhymes, Shweta. And And second one is counting. yeah, so within the rhymes, was the counting integrated? I'm not sure Rhyme, about that. rhyme करते करते ही counting की activity integrated थी, right? Ma'am, it is not clear from that video, ma'am. See. So sorry. Look at that one. What's different about this one? Were you able to hear it? Yes, ma'am. Yes. I'm sorry because the moment I make it full slide, I'm not able to give it to you, play it the part which I want you to see. So I'll have to do it this way. So the teacher is doing the rhyme, and while she's doing the rhyme, the activity of counting, she's also taking out stuff and putting it. She's narrating the rhyme, and she's also giving them, encouraging them to count, right? And the children are sitting in on the tables and chairs, or they're sitting in a semicircle. Did you notice what is the setting? They're sitting in a semicircle. Table of moon table. And the little pig, mind your own business. Was that a storytelling? Yes. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Storytelling
And again, children, was the teacher sitting on the chair and telling and the children down, or the children were all together with her? All together with her at At same her level. same level. Does it help? Yes. Yes, For ma'am. very, very small children, जिनका attention span बहुत कम होता है, like you know your 2.5 year age group, जो आपका प्री नर्सरी का होता है, प्ले ग्रुप एज ग्रुप होता है, they feel the warmth, they feel connected, right? थोड़े से बच्चे बड़े हो सकते हैं, then the teacher can be in center and everybody could be there, but the whole reason is about that depending upon your age group, you have to also arrange your sittings. Your seating is very important. All right. So with this, I am going to stop this video and would like to recap. You remember we talked about integrating elements of play in the classroom, quality circle time, learning centers, sensory play, stories and rhymes. आपने इन सारे elements को इस वीडियो में देखा? There was also the sensory play के अंदर आपकी nature walks भी included हैं, आपका water play, sand play, nature corners, exploration, right? So today we are going to talk a bit about the brain development during the early childhood. अभी तक हम सब बात कर रहे थे, हम सब ने अग्री किया है that as early years educators, national education policy is telling us that हमको developmental domains और brain development को center पे रखकर अपना पूरा learning experience plan करना है, और उसमें हमने पता किया कि play is the pedagogy of play has to be used in the early years because it is important for the brain development of the children, right? और फिर हमने थोड़े थोड़े aspects of elements of play समझने शुरू किए, conversation, stories, nature walk, circle time, right? फिर हमने डिस्कस किया कि ये सब कुछ जो elements of play हैं, इनको हम अपने क्लासरूम रूटीन्स एंड रिजीम्स में कैसे लेके आ सकते हैं. तो हमने उनकी स्ट्रैटेजीज ढूंढी. सेंसरी प्ले, अगर हमें नेचर विजिट्स या नेचर वॉक या नेचर से बच्चों को करवाना है तो वी शुड हैव अ रूटीन ऑफ सेंसरी प्ले एवरी मॉर्निंग. Then we decided that we need to have, if we want to have conversations, right? If we want to have rhymes and stories, then circle time is a very important routine time, right? Then we said that if we want to have more of our children doing art and craft, then we should plan learning centers for them. अगर हमें उनको डिस्कवरी करानी है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स कराने हैं, तो हमें अपने लर्निंग सेंटर्स प्लान करने होंगे जहाँ पे बच्चे जाके वो कर सकते हैं. वो हम उनको इंक्वायरी देंगे और वो इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है, प्रिडिक्शंस देंगे. सो हमारे जो भी पेडागोजी ऑफ प्ले है वो रूटीन में कैसे आए, ताकि हमें पता चले दैट वी हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द पेडागोजी एस्पेक्ट्स ऑफ प्ले. इसीलिए हमारे रूटीन्स एंड रिजीम्स एस्टैब्लिश करना वेरी इंपॉर्टेंट है. एवरीबडी इज विद मी, प्लीज टेल मी यस और नो. सबको ये समझ में आया प्ले और रूटीन्स एंड रिजीम्स? Yes, ma'am. ओके. Yes. अब हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन डेवलपमेंट की. अभी तक हमने पढ़ा था डेवलपमेंटल स्टेजेस, राइट, जहां पे हमने जीन पियाजे की रिसर्च पढ़ी थी. प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस. अब हम पता कर रहे हैं कि हमने सारे एलिमेंट्स ऑफ प्ले समझ लिए, राइट? अब हमें उन सारे एलिमेंट्स ऑफ प्ले में ब्रेन डेवलपमेंट को क्यों ध्यान में रखना है. एज अर्ली इयर्स टीचर्स, लक्ष्मी को ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन के फंक्शंस पता होने क्यों जरूरी है?
Why do you think it is important for us as early years teachers to know this? Any guess? No right and wrong answer. Ma'am, so that we can understand the capability of the child, Okay, how much they can take from us, how we can teach them. For that, I think, ma'am. good. Ma'am, it's 3 to 6 years. Kids' brain is development is very fast. So teachers should understand the brain development activities first. Very good. Very good. Any more thoughts? Anybody else? Gina, Ruchi, Anita? Anybody else who would like to share? Ma'am, Ma'am, please repeat the question, ma'am. Why do we as early years teachers should understand brain development? So that we can join them, we can connect with them according to their level. Good. Okay, एज Gina? के अकॉर्डिंग मैम बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है. Okay, very good. Jeenat, you were saying something? यस मैम, कंसंट्रेशन जैसे बच्चों का फ्री प्ले जैसे हमने अरेंज किया था फ्री प्ले एक्टिविटी, वैसे ही Sensory play. बच्चों का हाँ इंटरेस्ट मैम, बच्चों का इंटरेस्ट वो तो टीचर को ही डिसाइड करना पड़ेगा. बच्चे तो ऐसा उनके ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हम नहीं बता सकते. मतलब एज पर टीचर अंडर ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ेगा. वो कंसंट्रेशन, सेंसरी प्ले, फ्री प्ले, that's Yeah. it. Yeah. Good. So as early as teachers, हमारा काम सिर्फ जो हम अभी तक कन्वेंशनली करवाते आ रहे हैं, एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी करा दी, आर्ट एंड क्राफ्ट करा दिया, राइट? हमने किसी दूसरे स्कूल क्या क्या करवा रहा है उनकी एक्टिविटीज देख ली, स्पेशल डेज की एक्टिविटी करा दी, डांस म्यूजिक करा दिया. बट एज अर्ली ईयर्स टीचर्स जब हम अपना डे प्लान करते हैं तो हम सिर्फ अपने बच्चों को नॉलेज और इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, राइट? हम अपने बच्चों को जो उनकी ब्रेन के लिए, उनकी एज और स्टेज के लिए अप्रोप्रिएट है, राइट है, वो दे रहे हैं. तो अगर हमारे पास ये चेकलिस्ट नहीं होगी कि मैंने पूरे दिन में ऐसा क्या क्या किया जो कि बच्चों के लिए डेवलपमेंटली और अप्रोप्रिएट है, तो हम सिर्फ उनको एक फन एंगेजमेंट दे रहे हैं, डीप एंगेजमेंट नहीं दे रहे. ओके? Yes, ma'am. और इस टाइम पे एज लक्ष्मी सेड दैट research says that in early childhood the brain develops as an integrated whole. एंड जो अर्ली ईयर्स है, जो फर्स्ट 8 years ऑफ हमारे बच्चे के लाइफ के होते हैं, उसमें बहुत रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है. अगर हम ये फर्स्ट 8 years, 0 to 8 years में एज टीचर्स, एज केयर गिवर्स, एज मदर्स, अगर हमें अपने बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट कैसे फंक्शन कर रही है, क्या न्यूरोलॉजिकल साइंस है, वो नहीं पता होगी, तो हम उनको अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस नहीं देंगे. और दिस इज अ रीजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बार पूरा एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल ईयर्स के लिए उसने डेवलप किया है. अब इसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट. अब जो हम दूसरा मॉड्यूल, अपना मॉड्यूल 3 शुरू करेंगे, मॉड्यूल 4 शुरू करेंगे, वी विल टॉक मोर एंड मोर अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड द एक्टिविटीज, राइट? सो उसको समझने से पहले कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे हम बहुत ध्यान देते हैं, कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें अपनी बच्चे के ब्रेन के बारे में नहीं पता. ओके? सो प्लीज क्विकली लुक एट दिस. हमारी ब्रेन के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है Yes, टीचर. ma'am. सेंसरी ब्रेन,
लिम्बिक सिस्टम और न्योकॉर्टेक्स। ओके, सेंसरी ब्रेन क्या है? ये 3 जो एरियाज हैं ब्रेन के, ये नीचे से शुरू होते हैं और एक हिरार्की है। आप लोग हिरार्की समझते हैं? पहले टीचर होती है, फिर कोऑर्डिनेटर होती है, फिर प्रिंसिपल होती है ना? पहले आपका मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट होती है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है। हिरार्की, हिरार्की मीन्स एक स्टेप वाइज स्ट्रक्चर। ओके, इस स्टेप वाइज स्ट्रक्चर जो ब्रेन का बना हुआ है वो एक है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, राइट? वो ये ऐसे नहीं हो रहा है कि सब में काम चल रहा है, बट होता ऐसे ऐसे है, स्टेप वाइज। और उस हेरार्कियल ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है? सेंसरी ब्रेन। हमने इसके बारे में बात करी थी कि सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो कि जीन पियाजे ने भी हमें बताया है, राइट? बच्चा कहाँ से सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है? सेंसेस से। क्या बच्चे को बोलना आता है 0 to 6 months में, 0 to 1 year में? नो मैम। वो सिर्फ क्या No, करता ma'am. है? रोता है, खाता है, पीता है, सोता है, right? He Yes. drinks, Yes, ma'am. eats, sleeps, wakes up, again eat, passes out the stool, Right. again sleep, again Expression. eat. Expression. Yes. So the neuroscience says that the brain develops in a hierarchical manner. Okay, one after the other. So sensory brain is responsible for basic survival and stress response. आपने देखा है बच्चा नींद में ऐसे डर जाता है, right? Yes, ma'am. In fact, that is a little part I really don't have research to show you, but आपने देखा है कि बच्चे नींद में मुस्कुराते हैं, बच्चे नींद में डर जाते हैं। So we give support to them, हम उनको टाई करके रखते हैं। Why? Because the sensory brain is operational. तो थोड़ी सी भी अगर बच्चे को कोई बाहर स्टिमुलस आएगी एनवायरमेंट से, बच्चा एकदम डर जाता है, राइट? सो वी गॉट टू कीप देम सेफ, ऑलराइट? फॉलोड बाय द लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है? इमोशनल रेगुलेशन। भूख लगी, रोना है, पेट भर गया, खेलना है ना? अगर कोई Yes. हमको, अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाएगा या कोई ऐसी चीज आ जाएगी तो हम रोने लग जाएंगे। अगर मेरा टॉय ले लिया तो रोएंगे, मांगने के लिए रोएंगे, या फिर शाउट करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज लिम्बिक सिस्टम डूइंग। एंड फाइनली द न्योकॉर्टेक्स। Neocortex, cognition or reasoning. Cognition means our ability to grasp knowledge, develop knowledge, understand concepts. That is called your major cognition, is your ability to think, is called cognition. Making sense? सबको यहाँ पे 3 ब्रेन के पार्ट समझ में आए टीचर्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lovely, very good. Now, let's try to understand some aspects of the each part of the brain. अभी हमने बात करी सेंसरी ब्रेन इज सर्वाइवल फर्स्ट। अगर ये लेवल, और सेंसरी इनपुट क्या है? साउंड, टच, मूवमेंट, आपकी सारी सेंसेस। अगर ये डिसरेगुलेट होता है तो पूरी जो हायर थिंकिंग है वो शट डाउन हो जाएगी, राइट? अगर कोई भी बच्चा, व्हाट इज व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द मदर्स स्टमक, फर्स्ट थिंग पीडियाट्रिशियन क्या देखता है? बच्चे को मारता है, राइट? और सारे सेंसेस चेक किए जाते हैं कि अभी उस 0 डे के हिसाब से आर ऑल द फंक्शन, सेंसरी फंक्शंस एंड ऑर्गन्स आर वर्किंग, राइट? सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि अगर आपका ये जो सेंसरी ब्रेन है ये ठीक नहीं करेगी तो बच्चा स्टिमुलस से जो उसका एक्सचेंज चल रहा है वो नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उस पर। कब पीना है, कब सक करना है, कब बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं उन पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ऑल दोज रिफ्लेक्सेस, हम इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सेस, जो आपके कंट्रोल में आप एकदम रिएक्ट करते हो, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शंस,
वॉलेंटरी फंक्शंस क्या होते हैं? जब हम चूज करते हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है। इनवॉलेंटरी, जो आपके होते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा, राइट? मैं अगर आपके आंखों के आगे ऐसे करूं तो आपकी आंखें बंद होंगी, ऐसे करूंगी, क्या Yes, होगा ma'am. वो? Closed इनवॉलेंटरी eyes. रिस्पॉन्स है। इनवॉलेंटरी, आप नहीं कर रहे हो, अपने आप हो रहा है ना? All Yes, right, ma'am. now let's look at the stages of development in sensory brain. Reflexes, breathing, feeding, sleep and waking cycles, crying, calming through touch. आप बेबी को रॉक करते हो तो वो Yes, थोड़ा ma'am. सा काम डाउन हो जाता है। फर्स्ट टू 3 इयर्स में मूवमेंट होती है, बैलेंस होती है, गर्दन टिका रहे हैं बच्चे, हमने इसके बारे में बहुत बात करी थी। रनिंग हो रही है, वेस्टिबुलर और आपको प्रोरिसेप्टिव एरियाज के बारे में बात करी थी हमने, राइट? 3 to 5 इयर्स में क्या हो रहा है? टॉलरेंस टू नॉइज, मूवमेंट, ट्रांजिशन, थोड़ी बच्चा बैठ सकता है, रूटीन फॉलो करता है। और 5 to 8 में बच्चा ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्सेज, दे कैन इवन होल्ड their नेचर कॉल, दे हैव मोर थिंग ओवर द बाउल मूवमेंट, राइट? वो अपने रिस्पॉन्स, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उनको किसी बात पे बुरा लगा तो वो एकदम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर सेंसरी ब्रेन। कैन यू सी टीचर्स? और जब भी मैंने आपको अभी क्या बोला कि अगर आपके पास कोई 2 इयर्स प्लस का बच्चा है तो वो अभी आपका कौन सी स्टेज में है? सेंसरी इंटीग्रेशन, राइट? तो उसको जब आप सर्कल टाइम पे एक छोटा सर्कल में उनको अपने साथ बैठकर उनका हाथ पकड़ के या उनको एक सेंसरी टच देते हो तो उनकी ब्रेन में क्या सिग्नल जा रहा है? दे फील सेफ। उनको क्या फील हो रही है? सेफ्टी। तभी हम कहते हैं ना, जो 2+ एज ग्रुप होता है, वी शुड नॉट हैव मोर देन 5 to 6 चिल्ड्रन इन दैट ग्रुप, क्योंकि इतने बच्चों को आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी भी उनका सेंसरी ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए अटैचमेंट चाहिए। अगर भावना 2 years old की और वो लक्ष्मी इज हर टीचर, देन भावना विल कीप लुकिंग फॉर लक्ष्मी टू अंडरस्टैंड हर इमोशंस। उसे भूख लगी है, उसे नींद आई है, वो सोने वाली है, वो खुश हो रही है, वो सैड हो रही है। अपार्ट फ्रॉम द मदर, if I come to Lakshmi's play school, then Lakshmi would have to understand a 2+ year old child would have these kind of emotional settings, right? कि उसको उस हिसाब से 2 साल के सेंसरी ब्रेन के हिसाब से आपको रूटीन एस्टैब्लिश करने पड़े। बच्चे मॉर्निंग में आए, वो मम्मी को छोड़ के आए, वो रो रहे हैं, द ब्रेन इज नॉट फीलिंग सिक्योर, सेपरेशन एंजाइटी हो रही है। सो इट इज वेरी गुड दैट लक्ष्मी स्टार्ट्स गिविंग देम सेंसरी प्ले, right? She gives them free play. She takes them to do what they want to do: painting, gardening, digging, uh, doing the building the castle, right? No structured play. So all these sensory brain stages में आपके routine और regime बिल्कुल डिफरेंट होंगे। देन शी विल हैव टू इंक्लूड दैट आफ्टर दे हैव बीन हियर, अगर स्कूल में उन्होंने सुबह सेंसरी प्रे किया है, 15 minutes बाद दे ऑल हैव टू गो टू द वॉशरूम, बिकॉज अगेन जो तो बच्चों का इम्पल्स है, जो बाउल मूवमेंट है, एबिलिटी टू कंट्रोल इज वेरी लेस। तो हो सकता है एक्सीडेंट्स हो जाए, दे पी इन देयर पैंट्स, दे रिलीज, क्योंकि बच्चों को नहीं समझ में आता दैट आई नीड टू रिलीव माई सेल्फ, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, आई नीड टू यूज द वॉशरूम। तो आपका रूटीन क्या बनेगा? आफ्टर एवरी 15 minutes बच्चों को वॉशरूम लेके जाना है, ओके? सो वाई एम आई टॉकिंग अबाउट ऑल दिस? बिकॉज अभी हमने जितनी भी रूटीन्स एंड रिजीम्स की बात करी, वो सब आपको ईच स्टेज 2 years का अलग बनेगा, 3 to 4 years का अलग, 4 to 5 थोड़ा बहुत आपके रूटीन्स एंड ड्रीम्स सेम रहेंगे, बट जो आप उनका टाइम पीरियड लाएंगे, जो ब्रेक्स लाएंगे, वो आप थॉटफुली अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड प्लान करेंगे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट टीचर्स? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? Any questions so far about the sensory brain? Sadhna Kadam, any questions? No? Okay, all right. I thought you were asking each other some questions. Okay, now let's come to the level 2 of the brain. This level 2 is called limbic system, right? This is very important. We have been talking, national education policy has been saying safe environment, safe environment. What is safe environment? What do you call a safe environment for children? Is it only physical environment that has to be safe? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब वहां पे कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चा मुंह में डाल ले, कैंची नहीं होनी चाहिए, शार्प चीजें नहीं होनी चाहिए, आपके झूले ब्रोकन नहीं होने चाहिए कि चोट लग जाए बच्चे को। क्या सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट सेफ होना चाहिए, या जब बच्चा No. आपके क्लास में आता है, स्कूल में आता है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट के अलावा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसमें वो जाता है, और एक फिजिकल एनवायरनमेंट जो आप अपनी क्लास को ऑर्गेनाइज करते हो विद द सेंसरी मटेरियल्स और टॉयज, रिसोर्सेज, एक और तीसरा एनवायरनमेंट होता है, वो क्या होता Mental. Mental. है? ओके, मोर देन Emotional. मेंटल, इमोशनल। थैंक यू। Emotional. Emotions, ma'am. इमोशनल। सो एक इमोशन वो हम सबके साथ होता है, Yes, ma'am. राइट? अभी Yes. अगर मैंने आपको एक टास्क दिया करने को, आप में से बहुतों ने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। यू ऑल माइट हैव फेल्ट कि अरे हमने काम नहीं किया, हम कोई आंसर नहीं दे पा रहे। अगर मैं आप लोगों को रेप्रीमैंड करती, आपको डांटती या आपको डिमीन करती कि मैं आपको मीटिंग से निकाल दूंगी, आपने असाइनमेंट नहीं कंप्लीट किया, तो क्या आप दोबारा आना चाहते हैं इस सेशन में? No, ma'am. No, क्या ये आपका सेफ स्पेस होता जिसमें आप भावना से क्वेश्चंस पूछ सके? No. ma'am. बिकॉज यू विल ऑलवेज बी अंडर अ थ्रेट। आप हमेशा एक थ्रेट में रहोगे, एक डर में रहोगे कि ओ अगर मैंने पूछा तो ये मुझे बोलेगी नहीं आप बिल्कुल गलत समझो, आपको कुछ नहीं आता एरियाज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। सो एवरी टाइम एज ह्यूमन बींग्स हमारी ब्रेन, चाहे हम बड़े भी हो जाते हैं, इवन इन टिल द चाइल्ड यू नो वी आर 18 and 24, आपके लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है। आपने देखा कई बार हम बोलते हैं मुझे जॉब नहीं पसंद आ रही है, आई डोंट फील इमोशनली अटैच्ड, राइट? Yes, मुझे ma'am. इसके साथ कुलीग के साथ नहीं बन रहा है क्योंकि मेरे इमोशंस नहीं मैच करते, राइट? सो दिस इज नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन बट फॉर एडल्ट्स ऑल्सो, बट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के स्टेज में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज जब बच्चे आपके पास आते हैं वो सिर्फ पढ़ने नहीं आते हैं। They are not coming here because your brain, they are not coming here that you teach them ABCD. They're coming because they want to have a routine जहां पर वो अपने आप को अपने घर के एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में अडेप्ट करना सीखें, राइट? सो टीचर्स, एवरीबडी पुट अ हैंड ऑन योर हार्ट, और ये आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग जो अर्ली ईयर्स की है, that you have to provide your children an emotionally safe environment. And what does an emotionally safe environment means? Emotional regulation, attachment and bonding, sense of safety, memory linked to emotion. आपको याद है कई बार हम छोटे होते थे, हमें कोई टीचर मारती थी तो हमारे को इतना डर बैठ जाता था, हम उसकी टीचर की क्लास में कभी नहीं जाना चाहते थे, या कॉपी छुपा देते थे, उसका होमवर्क नहीं करना चाहते थे, राइट? सो द मेमोरी एंड इमोशंस आर ऑल्सो वेरी क्लोजली अटैच्ड। गेटिंग द पॉइंट? तो हम Yes. अगर हम इसके डेवलपमेंट देखें, देन आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन। बॉन्डिंग, ट्रस्ट, इमोशनल सेफ्टी,
6 months तक मदर इज अ चीफ केयर गिवर, राइट? 6 months तक मेटर्निटी लीव मिलती है, क्यों मिलती है? बिकॉज अ चाइल्ड, यू आर फीडिंग द चाइल्ड, मदर इज अ प्राइमरी केयर गिवर, राइट? बच्चा सबसे पहले मदर के टच को पहचानता है। उसके बाद जब हम 1 to 3 years में आते हैं, तब क्या आते हैं? इमोशंस, एक्सप्रेशन शुरू हो जाते हैं। अगर आप मम्मी छोड़ के जाएगी, पापा छोड़ के जाएंगे, हम रोएंगे, एंग्जाइटी होती है, टैंट्रम्स होते हैं। देखिए बच्चे जमीन पे गिर जाते हैं, सर मारते हैं जमीन पे, व्हाट डू वी कॉल देम? टैंट्रम्स। ओके, बट ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग? स्टिल द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन, इट इज नॉट डेवलप, वो डेवलप नहीं हुआ है, राइट? और जब 3 to 5 years में आते हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स बच्चे थोड़ी अडल्ट सपोर्ट के साथ एक्सप्रेस करना शुरू कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। अच्छा, ओके साधना, आई ओके? अगर आपको ठीक फील हो रहा है, हम अभी थोड़ी देर खेलेंगे और हम फिर चले जाएंगे, है ना? आई यू मिसिंग मम्मा? तो हम ऐसी कंफर्टिंग टॉक्स करते हैं बच्चों के साथ, ताकि उनके इमोशंस को हम चैनलाइज करें। क्या करें? चैनलाइज करें। एंड व्हाट इज ऑल दिस कॉल टीचर्स? ये अभी जो हमने जितने रूटीन एंड रिजीम पढ़े थे, तो हमारा एक रूटीन या 2 रूटीन मुझे बताइए जो कि आपको लगता है कि लिम्बिक सिस्टम ब्रेन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, जहां पर बच्चों के इमोशंस को हम एक्सप्रेस करने को दे रहे हैं, जाके हम बच्चों को एक इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट देते हैं। कोई एक रूटीन या रिजीम मुझे बताइए। Ma'am, सर्कल टाइम circle मैम। time. Okay, no problem, no problem. Let's look at those routines and regimes. If somebody, can you see my screen? I've put the routines and regimes in front of you. Yes, ma'am. Yes. So, कौन सा रूटीन आपको लगता है जो कि उनको इमोशनली, बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, अपने फीलिंग्स? सेंसरी प्ले, वेरी गुड। Circle एंड time. एनीथिंग एल्स? स्टोरीज Very एंड Stories good. and rhymes. Uh, स्टोरीज एंड राइम्स। think about, somebody said quality circle time. Quality circle Yes. time. Yes, ma'am. Yes. And which type of quality circle time जो हमने बोला था कि एक नॉन नेगोशिएबल क्वालिटी सर्कल टाइम है, जो आपको हमेशा हर रोज करना है, वो कौन सा था? Communication with students. Yes, communication with student. Very good, Geeta. There is one particular name, social emotional circle time. Remember? यस। जब हम बच्चों के पास हाउ आर यू फीलिंग, फीलिंग कार्ड्स दिखाओ, आप कोई टॉय लेके जा सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं आज हम कैसा फील कर रहे हैं, जाओ एक हैप्पी उठाओ, सैड उठाओ, फिर पूछो क्यों फील कर रहे हैं, राइट? सो क्वालिटी सर्कल टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूटीन एंड regime to support the limbic system, राइट? इमोशंस रेगुलेट करना। और फिर जब उसके बाद हम स्टोरीज करते हैं, और हम उन स्टोरीज में बताते हैं वो जेम्स को कैसा लग रहा होगा, जेम्स क्या डर रहा होगा अपनी मम्मी के बिना, जेम्स की मम्मी अगर देर से आएगी तो उसको क्या करना चाहिए, राइट? तो उसमें क्या हो रहा है, उस राइम को कर कर आपने बच्चों को अगेन एक इमोशनल एबिलिटी दी है कि अगर ऐसा हो जाता है और अगर हम फील कर रहे हैं तो हमें अपने आप को कैसे संभालना है, राइट? तो ये जो थॉटफुल स्टोरीज होती हैं, ये नहीं हम हर बार चूहे बिल्ली की कहानी सुनाएं, राइट? देर इज अ ब्यूटिफुल स्टोरी जो कि आज मैं आपको असाइनमेंट में भी देना चाहूंगी। अ किसिंग हैंड, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक्स। अ किसिंग हैंड। सब इस स्टोरी को कल पढ़ के मेरे पास आएंगे, इसका यूट्यूब वीडियो भी हो गए, आपको ध्यान नहीं है। एंड जैसे हमने स्टोन सूप करी थी, वैसे ही एक किसिंग हैंड एक स्टोरी है। आप सब इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, और फिर कल हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट?
अच्छा, अब किसी ने मुझे बताया, जीनत ने बोला सेंसरी प्ले। सेंसरी प्ले कैसे सपोर्ट करता है लिम्बिक सिस्टम ब्रेन डेवलपमेंट को, इमोशंस में कैसे सपोर्ट करता है? Who said sensory brain? I mean, like anybody can say. I mean, like. Any Kids idea? can play as per their choice. Whichever is interested, he can go and pick that one. He can play with that one. So do they get a sense of safety there? Are you trying to say, Lakshmi? Yes, ma'am. If Yes. comfortable that environment, then he'll play with safety, with the Yeah, safety. it gives a sense of safety to them. And also, when we say sensory play, Lakshmi, we meant to say water play, sand play, Yes, painting, right? build a tower, ma'am. Build a tower, or all this is also a kind of ability to take out pent up emotions. Pent up emotions क्या होते हैं? आज हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ना बस ये किसी को बताना है, आई कॉल अप माई फ्रेंड एंड सेड कोई मेरे से सुन ले मेरी बात। होता है ऐसे, पेंट अप इमोशंस होते हैं, इमोशंस बिल्ड हो जाते हैं। बच्चों के अंदर भी ऐसे इमोशंस होते हैं, राइट? तो जब Yes. बच्चे जाकर सेंसरी मटेरियल्स, मिट्टी के साथ जब कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ बनाते हैं या पेंटिंग करते हैं, राइट, या फिर पेंट ब्रश से कलरिंग करते हैं, उनकी कलरिंग, उनके आर्ट वर्क उनको एक वेंट दे रहे हैं। वेंट दे रहे हैं मतलब उनको एक रास्ता दे रहे हैं। इट इज गिविंग देम वे टू एक्सप्रेस देयर डीपर इमोशंस, जो कि उनको भी नहीं पता, सबकॉन्शियस लेवल पे चलते हैं वो, राइट? सो Yes. सेंसरी प्ले is a very important play, whether it is water play, sand play, choice मिलती है बच्चों को करने के लिए, so they are able to express their emotions, right? Yes, So ma'am. this reminds me, there's this child we observe that every time we give them free drawing, she would make a doll which is always lying down, which is always black, and hair are always scattered. And there will always be a big picture beside that, right? So वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक बार दो बार, क्योंकि बच्चों की अगर आप ड्राइंग्स को देखिए ना, तो बच्चों की ड्राइंग्स प्रोग्रेस होती हैं। कई बार गोले गोले बनते हैं, फिर उसके बाद बाल आते हैं, डिटेल्स आती हैं, फिर ऐसे ऐसे कलर्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरे कैरेक्टर्स आते हैं। जैसे जैसे बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है, उनको अपने एनवायरनमेंट में पता चलता है, वो होती है। पर अगर किसी बच्चे की ड्राइंग्स में या उनके जो वो सैंड से बना रहे हैं, गीली मिट्टी आप उनको देते हैं, चीजें बनाते हैं, गुड्डा गुड्डी बनाते हैं, उसमें अगर आपको कभी ऐसा दिखता है कि एक रेकरेंट कैरेक्टर चलता जा रहा है, वो ही कलर है, then this is something that you need to understand as teachers, that you take them for some kind of counseling, कि हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि बच्चों के अंदर कोई इमोशनल ट्रॉमा नहीं चल रहा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स टीचर्स? इसलिए बच्चों की ड्राइंग्स और बच्चों का जो काम है, वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बैठ के चाय कॉफी पिए हम सब। वो इसलिए भी है कि वो टीचर के लिए ऑब्जर्वेशन बने कि बच्चे के अंदर कोई इमोशनल सप्रेस्ड इमोशन तो नहीं चल रहा। ओके टीचर्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, Also, ma'am. I wanted to share with you that sensory play is very important for your sensory brain, right? बिकॉज इस टाइम पे सेंसरी ब्रेन इज टॉकिंग अबाउट फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। बच्चा हर एक चीज जो एनवायरनमेंट में है, कीड़ा, कॉकरोच, डॉग, एनिमल्स, बर्ड्स, उनको रिस्पॉन्ड करना सीख रहा है। आपने देखा छोटे बच्चे कभी भी ज्यादा डॉगी वगैरह से डरते नहीं है, हम उनको डराते हैं, हम उनको बताते नहीं ये काट जाएगा। पर आपने कभी देखा कोई बच्चा डरता हो? वो जाके खेलते हैं आराम से, राइट? बट हम उनको धीरे धीरे एक सेंसरी इनपुट देना शुरू करते हैं कि मिट्टी को मुंह में नहीं डालना,
राइट? या पत्थर को ऐसे नहीं तोड़ना, या गर्म पानी को ऐसे नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं कि कौन सा स्टिमुलस को, कौन से राइट बिहेवियर से, रिस्पॉन्स से हमें डील करना है। बट कई बार टीचर्स, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, जब सेंसरी ब्रेन डेवलप होती है तो हम कई फियर्स बच्चों के अंदर, कुछ आपने सुना है कई ट्रॉमास होते हैं, कई बच्चों को हाइट का फियर डेवलप हो जाता है। ये जो स्ट्रॉन्ग फोबियाज, आपने एक वर्ड सुना होगा, फोबिया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सुना है? अब Yes, जब ma'am. ये आपकी सेंसरी ब्रेन डेवलप हो रही है, जहां पर फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, क्योंकि फियर्स और फोबियाज कहाँ से आ रहे हैं? चीजों से आ रहे हैं, Yes. एनवायरमेंट से ही आ रहे हैं, है ना? Yes, तो yes. कोई चीज है जिसमें हमने इंटरैक्ट किया उस चीज के साथ, और हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि हमें कुछ फिजिकल पेन आया, या हमें कोई इमोशनल पेन आया, तो हमें उसके डर लगता है, नहीं अब मैं नहीं करूंगी, अब मैं नहीं हाथ लगा रही हूँ, मुझे ये काट जाएगा, या मैं गिर जाऊंगी नीचे। So teachers, I want to bring your attention, as early years teachers and as mothers and as caregivers, as parents, sometimes you have to let the child experience without giving them over input. नहीं, यहां से कूदोगे तो गिर जाओगे। No. The right way to tell is, you know what? This is very high and we are very small. राइट? सो हम अगर कोशिश करेंगे ज्यादा तेज गिरने की तो हम गिर सकते हैं, राइट? तो उससे पहले हमें ट्राई करना चाहिए कि हम थोड़ी हाइट से जंप करें। और इसी वजह से जो मैंने आपको उस दिन बताया था, हमें वेस्टिबुलर प्ले, स्पेशियल अवेयरनेस वाली गेम्स ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खिलानी चाहिए, ताकि बच्चों को सेंस डेवलप हो कि क्या उनके लिए ठीक है, कितना प्रेशर, कितनी ऊंचाई। बट कई समटाइम्स आई हैव सीन पेरेंट्स ट्रांसफर देयर ओन फियर्स टू द चिल्ड्रन। नहीं नहीं, कुत्ते को पेट नहीं करना, वो काट जाएगा। सेफ्टी इज ओके, बट वो जरूरी नहीं है वो आपको काटे, बिकॉज नो एनिमल इज गोइंग टू बाइट यू जब तक वो फियर फील नहीं करता आपसे। एम आई राइट? Yes, ma'am. राइट? सो Yes. टीचर्स एज यू, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लक्ष्मी ने बोला कि स्टोरीज एंड राइम्स भी हमारे लिम्बिक सिस्टम को, इमोशंस के बारे में बात कर रही हैं। कुछ स्टोरीज टीचर्स और कुछ राइम्स ऐसी हैं जो कि हम करते आ रहे हैं। डू यू रिमेम्बर दैट राइम, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty, Had a great fall. And all a the great king's men couldn't put Humpty back again. उसी तरह अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं इस राइम में? Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. तो इसका मतलब कि अगर हम बैठेंगे तो हम कभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते। हम क्या बता रहे हैं? फिर आपने एक स्टोरी सुनी होगी थ्री लिटिल पिग्स की, जिसमें वुल्फ आता है और बोलता है, बाय द हेयर ऑफ योर चिनी चिन आई विल ब्लो योर हाउस, आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस। सुनी हुई है आपने? Yes, ma'am. वुल्फ जो होता है वो घर के ऊपर उससे निकल के आता है कूद के। तो हम क्या बच्चों को इस स्टोरी में बता रहे हैं? फियर, दैट हाउस इज नॉट अ सेफ प्लेस। आपने एक और राइम कह लीजिए, एक छोटा सा सॉन्ग सुना होगा, रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। सुना है? Yes. Yes. आप अगर आप इसकी, अब ये सारे हमारे कॉलोनियल, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमको इतना राज किया है हमारे ऊपर, कि कुछ चीजें हमने उनकी ले ली, राइट? बिना अपनी अक्ल लगाए, बिना Yes, किसी ने भी नहीं पूछा कि इस राइम का मतलब क्या है। जब एक पैंडेमिक आया तो उस पैंडेमिक के टाइम पर ये छोटे छोटे रिंगा रिंगा रोजेस मीन्स बच्चों के इधर एक ऐसे रैशेस आ रहे थे।
उसको करके सबके सब लोग ऐसे रैशेस आ रहे थे और मर रहे थे. इट इज एक्चुअली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पैंडेमिक. आपको पता है ना, पैंडेमिक, कोविड वाज अ पैंडेमिक, राइट? Yes, ma'am. So this rhyme is based on that. But हम as early years teachers यही कराते जा रहे हैं. So do you think it is right for our children's brain, the sensory brain and the limbic system? No, ma'am. No. So that is why I'm telling you are professional early years teachers. Very important for you to understand. जब भी आप कोई स्टोरी कराते हैं, कोई राइम कराते हैं, क्या आप कोई फियर तो नहीं ट्रांसलेट कर रहे? मैंने आपको लास्ट टाइम जब हम स्टोरीज एंड राइम्स कर रहे थे, मैंने आपको ये भी बताया था, हम बायस भी प्लान कर देते हैं, अब बच्चों को दे देते हैं कि वो प्रिंसेस थी, उसको स्नो वाइट को बचाने एक प्रिंस आया. सो दैट वे वी आर ट्राइंग टू शो कि गर्ल्स अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, दे ऑलवेज नीड अ मैन. या फिर हमने बोला राजा की बेटी थी, वो इतनी कोमल थी कि उसके 4 गद्दों के नीचे एक तिनका था और उसकी बॉडी पे मार्क आ गया. आपने ये स्टोरी सुनी हुई है? बहुत पुरानी स्टोरी है ये. तो हमें उसमें क्या दिखाया कि लड़कियां क्या होती हैं, बहुत कमजोर होती हैं. हर एक आपकी जो पुरानी स्टोरी है उसमें किंग आ रहा है, प्रिंस आ रहा है, वो सेवियर है. जबकि हिस्ट्री कहती है जॉन ऑफ आर्क, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सरोजनी नायडू, all have been very brave women. Isn't it, teachers? Yes, ma'am. तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टोरीज एंड राइम्स को ध्यान में रखना कि क्या मेरी स्टोरी राइम में कोई जेंडर बायस है, कोई फियर है जो मैं अपने बच्चों को दे रही हूं सुनाकर, राइट? प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू डू ऑल दिस, टीचर्स. मेक सेंस? And that is why you should try to build your own local stories and rhymes in your own language. चींटी को लेकर, आपके पास अगर अच्छा कोई फूल है, पेड़ है आपका, आपकी कोई लोकल गाथा है जो कि आपको एक पेट्रियट के बारे में पता है, देशभक्त के बारे में पता है, इट्स गुड टू हैव स्टोरीज एंड राइम्स अराउंड दैट rather than just taking all the English rhymes verbatim. Right? Making sense? Yes, ma'am. Okay. Now let's go to the, we have talked about the stages of development in the limbic system. Limbic system is responsible for what, teachers? Brain Emotions. development, sensory brain development. No. It is, Lakshmi, please look at the thing. It says emotion. Everybody needs to understand this. Please take a picture if you want to. Sensory brain is taking care of your responses, sensory responses, survival. And your limbic system is taking care of your emotions. Before thinking happens, emotion. Right? आप किसी भी बच्चे को कैसे पता चलता है कि ये मैं मम्मी की गोदी में नहीं हूं, मैं दादी की गोदी में हूं, या मेरे आज जो चाचा आए और वो रोना शुरू कर देता है, उसको तो पता भी नहीं है कि ये चाचा है या दादा है. वो कैसे प्रोसेस कर रहा है? टच से, फीलिंग से, इमोशन से. तो आप ये सोचो कि उसकी ब्रेन कितनी रिस्पॉन्सिव है. तो बिफोर उसको कुछ भी बोलना आता है, कोई रिलेशनशिप को मैनेज करना आता है, उससे पहले उसकी सेंसरी ब्रेन उसको सिग्नल्स दिए जा रही है, राइट? सो इवन बिफोर यू स्टार्ट टीचिंग, उसकी थिंकिंग डेवलप हो, सबसे पहले क्या डेवलप होते हैं? सेंसेस, सेफ्टी एंड योर इमोशंस. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Everybody is going to right now draw this brain structure in their notebooks and write in one word to tell me that what is the sensory brain doing, what is the limbic system doing, and show me. Because it's very important that we are not doing lecturing here. आपके लिए इस चीज को समझना
रूटीन्स एंड रिजीम्स में, डेवलपमेंटल डोमेन्स में, स्टोरीज और राइम्स के सिलेक्शन में, जो आप उनको टेक्स्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। इनफैक्ट जब आप बच्चों से किस लेवल पे बोलते हैं, आपकी टोन से भी आप उनके इमोशंस को इम्पैक्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्या गंदा सा बनाया है। इमोशंस आते हैं ना, ट्रिगर हो रहे हैं ना इमोशंस। So this is very important, teachers, that you understand this aspect of brain. Can I see everyone? Have you drawn? Turn on your videos and show me. So everybody is working on it. Can somebody tell me, are you drawing it? You can look at the picture, the sensory brain and the limbic system. What does the sensory brain? लिखिए, एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाइए कैसा भी, उसमें उसको मार्क कीजिए। सेंसरी ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, और फिर उसमें मुझे दिखाइए सेंसरी ब्रेन क्या करता है। कैन यू शो मी, गीता गायके? हैव यू ड्रॉन? It's okay. It's okay. Whatever you have made, I just want to see that. Not necessarily कि वो आपका ब्रेन ही लगे। कुछ भी हो सकता है। Please turn on your videos, teachers, and show me. Anybody who would like to volunteer? Ma'am, wait. Sure. Okay, so this is sensory brain and limbic system that we have learned about today in the brain development. Okay, everyone? If you would like to show me, I'm waiting for you. But in the meantime, I'll also revise with you. कल आप क्या देख के आ रहे हैं? A kissing hand का वीडियो या फिर स्टोरी आप सुन के आएंगे and we will talk about it. राइट? और आप सबने जो अपना डेली प्लानर बनाना है वो आपको प्रतिभा मैम को बनाकर उसकी पिक्चर खींचकर उनको सबमिट कराना है. दैट्स योर असाइनमेंट 4. Anybody who would like to show, else we will close the session. Oh, nobody wants to show me anything. So sad I am. Okay, never mind. A quick recap, teachers. What are the two parts of brain that we studied about today? Quickly. Level Sensory, one. Yeah, level 1 is Sensory brain. Sensory brain. lovely. And level 2 is Limbic system. Limbic system. lovely. Very good. And sensory brain looks after the Emotion, senses, Senses. touch, feel. Respond. safety, security, responding to the environment. Sensory response to the environment. Sensory response to the environment. Okay? yes, ma'am. And limbic system looks after the Emotions. Regulation, emotional regulation, right? attachment and bonding, Yes, very good. sense of safety.
Sense of safety. Very good. Thank you so much, teachers. Thank you so much. And we discussed also about the routine and regime. Sensory Yes, ma'am. play Yes. is best for the sensory brain, right? And for limbic system, we should have a routine and regime of quality, circle, time. Got it? Yes, ma'am. Great job. I'm so glad. Thank you so much for hearing me out. And I shall end the session today. And I shall meet you tomorrow. And we'll talk about the third part of the brain tomorrow. Okay? Sure, ma'am. Okay. Done? Thank you so much. You have a great day ahead. Bye bye. Bye, ma'am. Sorry, my breaker did not draw the well. It's okay. It's okay. It's all right. Thank It's absolutely fine. Doesn't matter. you. See you. And please never say sorry to me. We all are together learning from each other. Thank you so much, teachers. I look forward to see you tomorrow. Bye-bye.